Jai Hind students. Now, today we will start with the most important exercise of derivative 5.5, totally based upon log. So first, let us recall the things whatever you learned. We learned about the derivative of function, uski power, you can say that variable उसकी पावर कांस्टेंट CONST लिख देते हैं कांस्टेंट। तो उसकी डेरिवेटिव क्या होता था? जैसे f ऑफ x की पावर है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इट इंप्लाइज अगर f डैश निकालना है तो f डैश क्या आ जाएगा? इसका f डैश आ जाएगा nxn-1। देन वी स्टडीड कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब अगर मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, a की पावर x, a इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश क्या आएगा? इसका f डैश आएगा a की पावर x log ऑफ a। सो दिस वी लर्न हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दीज टू kind of functions. Now come to the third part. If you have variable की power variable, then how to find out the derivative of such functions? For example, if I am writing here x की power sin x, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो how to find it? So in these kind of questions we use log, that is called logarithmic differentiation. Let us see some rules of derivative or logarithmic कि log के क्या rules होते हैं, कैसे लिखा जाता है उनको, somewhere how to write. सबसे पहले मैं लिखता हूं log a xy means if two functions are in the product, so how to write? So इसको लिखा जाएगा log बेस में a x मॉडुलस ऑफ x प्लस log बेस में a मॉडुलस ऑफ y। यानी अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है और log लगा है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको वाइस वर्सा ऐसे भी लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, x and y should be, या x into y should be greater than 1, क्योंकि अगर ये 1 हो जाएगा तो log 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सेकेंड, log बेस में x, ध्यान से देखें, log बेस में भी x और यहां पे भी x, पढ़ेंगे इसको log x ही, और बेस क्या होगा? x होगा। तो इसको भी कैसे लिखा जाएगा? log बेस में x मॉडुलस ऑफ x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट लाइक दिस, log x यहां पे a अपॉन log a यहां पे भी x। सो कंडीशन वही, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। Now come to next part, log x upon y, यहां पे a लिख देते हैं, x upon y। so how to write? ये डिवाइड में है दोनों, so log x upon log y, और कंडीशन a इज ग्रेटर देन 0, और जो x और y है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? x एंड y ग्रेटर देन 0। यहां पे ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। सो दीज आर द कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन इज log a x की पावर है, पावर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पावर पीछे आ जाती है log
a of x. A should be greater than 0. So ये कुछ conditions हैं that we will apply while we will do this differentiation of log. कुछ conditions ऐसी हैं जो नहीं लगती हैं log पे. कैसे? y is equal to a plus b है. मैं दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई करता हूं, तो I can't write like this. ये गलत है. जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा, log a plus b, नॉट लाइक दिस. log अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है. इस चीज का खास ख्याल रखें. ओके, देन pause the video to note down and we'll start with the exercise. So each and every question of this exercise is very important. According to paper point of view for the competitive examination, so learn properly, see very carefully, because in each and every question we will use the log. Now here, see, here we have to differentiate three terms. Till now we studied to differentiate two terms. In that two terms we always use the product rule, but here three terms are there. So how to differentiate this? So very easy. देखो ध्यान से. Take log both sides. log लेते हैं, ये बना log y और यहां पे बाहर log cos x, cos 2x, cos 3x. Now what is the property of log? अगर ये तीन नंबर मल्टीप्लाई में है तो ध्यान से देखिए, अगर log लिखा हो a b c मल्टीप्लाई में तो वी कैन राइट लाइक दिस, log a plus log b plus log c. This is the formula. So we can write like this. So now log y is equal to log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. Now you can differentiate. Now it is a addition of three functions. So now we can differentiate. So differentiate with respect to x. सबसे पहले log का करेंगे, तो log होता है 1 अपॉन एंगल. फिर एंगल का तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx. ऐसे अगेन log किसका, cos 1 अपॉन एंगल. cos का करेंगे तो माइनस साइन x. फिर x का 1, अगेन log 1 अपॉन cos 2x मल्टीप्लाई में cos का करेंगे माइनस साइन 2x. log का हुआ, cos का हुआ. अब एंगल का 2x का करेंगे तो मल्टीप्लाई. देन थर्ड प्लस 1 अपॉन cos 3x माइनस साइन 3x. 3x का करेंगे. Now we have to arrange the thing. That's it. We have to find dy upon dx. dy upon dx. So ये y है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा. So y की एक्चुअल में वैल्यू क्या थी वो आप लिख लें, cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में माइनस बाहर sin x अपॉन cos x 10x. cos पहले माइनस फिर कांस्टेंट sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x माइनस 3 tan 3x. So this is your answer. This is the answer of this derivative. So simple. Otherwise
if you will use the product rule कि इसको एक फंक्शन माना इसको अलग माना, then it will become more complicated. So log will make the question so easy. It can help us to solve maximum number of terms. Pause the video to note down. So come to next part. Again very important. X minus 1, x minus 2, total 5 terms are there. 2 in multiply and 3 in divide. And under root is also there. So I have written like this. Instead of under root, I have written 1 by 2. एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. So again we will use log over here. So log लेंगे दोनों तरफ. Take log both side. तो मैं log लेता हूं. ये log y. सबसे पहले log जैसे ही लिया मैंने, log x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5, उसकी पावर 1 by 2. तो log क्या करता था? आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, log x की पावर n. कैसे लिख सकते हैं इसको? n log x. सो वही सबसे पहले पावर क्या होगी? डाउन. नाउ ध्यान से देखें, ये है log a b अपॉन c d e. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 नंबर मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में. तो लाइक दिस वी कैन राइट log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d माइनस log e. प्रॉपर्टी है u अपॉन b की प्रॉपर्टी अगर log में देखें तो आई कैन राइट लाइक दिस log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5. So I taught you already that while taking log, it is very easy to solve this type of derivatives, to solve this type of question using log. Now log y. Now you can differentiate with respect to x. Differentiate 1 upon y dy upon dx is equal to half. बाहर है, बाहर ही रहने दो. log का करेंगे तो 1 upon x minus 1. फिर एंगल का करेंगे, x का 1 होता है, 1 का 0 तो कोई जरूरत नहीं है. प्लस 1 upon x minus 2 माइनस 1 upon x minus 3 माइनस 1 upon x minus 4 माइनस 1 upon x minus. तो हमने सबके डेरिवेटिव कर दिए. नो नीड टू टेक एलसीएम, ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपको ये काम नहीं करना है. डू वन थिंग, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx. वो क्या होगी? y ऊपर मल्टीप्लाई हो गया. y की क्या वैल्यू है? y की वैल्यू है अंडर रूट 1 by 2 बाहर, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5 अंडर रूट में ब्रैकेट में 1 upon x minus 1, 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3, x minus 4, x minus 5. So this is your answer. So simple. But if you will not use this log over here, it will become very complicated and it will use more than 15 to 20 minutes to solve like these questions. Pause the video to note down. Now come to problem 3. log x उसकी होल पावर cos x है, तो इसको मैं वो नहीं कर सकता. ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं हो सकती. कौन सी? log x की पावर है. एंगल की पावर होनी चाहिए, तब n नीचे आता है. Then I can write like this. So what to do here? Again variable की पावर वेरिएबल है, to solve these kind of question, take log both side. Take log both side. So ये बना log y और ये बना log एंगल में
log x की पावर cos x। अब यूज द प्रॉपर्टी ऑफ log y इज इक्वल टू cos क्या हो गया, नीचे आ cos x, अंदर क्या रहेगा log ऑफ x। ये इसका एंगल है, ये दो अलग फंक्शन हो गए। यू कैन यूज द प्रोडक्ट रूल ओवर हियर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 upon y dy upon dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सेकेंड की करेंगे, सबसे पहले log 1 upon एंगल, ये इसकी खत्म होगी अगेन एंगल की, तो अगेन एंगल log है 1 upon, फिर उसका एंगल x, तो 1 upon x, x की दोबारा करेंगे 1 आएगी, नो नीड टू डू इट, प्लस log ऑफ x इनटू cos की करेंगे माइनस sin x। नाउ अरेंज द थिंग्स, dy upon dx इज इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ y log x की पावर क्या है cos x, अंदर लिखेंगे cos x अपॉन x log ऑफ x माइनस log ऑफ x into sin x। So this is your answer of this function. So like this we can utilize the properties of log. Now here comes now two different terms. One is variable की power variable, other is constant की power variable. How to solve these kind of questions? We can't take log because मैंने आपको बताया था कि अगर y is equal to a plus या minus b है तो मैं log लेता हूं, तो log जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। I can't multiply this log inside, पॉसिबल ही नहीं है, इसको कभी भी इस वे में नहीं लिखा जा सकता log a plus minus log b, इस चीज को गलत है। So then how to take the log, how to solve it? So see carefully. सबसे पहले मैं इनका नाम लिखूंगा, इसका a लिख लेता हूं, इसका b। Listen this step carefully. अब I will differentiate this with respect to x, differentiate with respect to x। तो ये बना dy upon dx, ये बना dA upon dx, ये बना dB upon dx। Now I will find out the value of dA upon dx and dB upon dx and I will put here. So for this I have to differentiate a function with respect to x। a function क्या है, ये है x की पावर x। अब ये अगेन अलोन आ गया, सिंगल डिजिट उसमें आ गया फंक्शन, ऐसे नहीं रहा, तो यू कैन टेक लॉग। सो टेक लॉग बोथ साइड। सो ये बना log a इज इक्वल टू log x की पावर x। सो log a इज इक्वल टू x log of x, डिफरेंशिएट with respect to x, 1 upon a, log का करेंगे 1 upon a का करेंगे dA upon dx, dA upon dx is equal to, use the product rule, first function as it is, log का किया 1 upon angle का किया 1 plus log x as it is, x का करेंगे तो 1। so dA upon dx is equal to, a मल्टीप्लाई हो गया, a की वैल्यू थी x की पावर x, ये कैंसिल आउट हुए 1 प्लस log x। So this is the derivative of dA upon dx. Now find out the derivative of b। b क्या है, b है 2 की पावर sin x। ये कौन सी वो बनी, ये बना वेरिएबल की पावर, सॉरी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और उसकी ddx क्या होती है, उसकी ddx होती है
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, लॉग ऑफ कांस्टेंट और फिर पावर की। सो इसकी जो डेरिवेटिव होगा कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो b बना db अपॉन dx, वेरिएबल की कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट इनटू जो पावर है वेरिएबल उसकी दोबारा, तो साइन की क्या हो जाएगी, cos x। इसका एक और मेथड है, यू कैन टेक लॉग, दोनों तरफ आप लॉग ले सकते हैं तो भी सेम ही आंसर बनेगा। सो ये क्या बना, ये बना cos x इंटू 2 की पावर sin x log of। Now both the value, just put both the values in equation 1, db upon dx। Now write down the value of किसकी, हम लिखेंगे अब वैल्यू किसकी लिखेंगे, dy upon dx। So dy upon dx is equal to dA upon dx 1 plus log x minus dB upon dx cos x 2 sin x log of। So this is your answer। So like this, when there is a addition or subtraction of two different functions who are in the form of variable की power variable और variable की power constant की power variable, then we can use this kind of method. This is the way you can solve these questions. Pause the video to note down. Now come to problem 5. Again, this is a product of three different functions. So we take log both sides. Yeah, taking log both sides, log y is equal to log x plus 3 का स्क्वायर, x plus 4 का स्क्वायर, x plus 5 का स्क्वायर। अब log अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बट वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ log, log a b c। I can write log a plus log b plus log c। Again, this function is having power, so according to the property of log, अगर log की जो एंगल है उसकी पावर है वो पावर डाउन की जा सकती है, x plus 3 2 log x plus 4 plus 2 log x plus 5। Now you can differentiate this, log y differentiate with respect to x, 1 upon y dy upon dx। 2 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ तो बाहर आ गया, लॉग की करेंगे 1 अपॉन एंगल, एंगल की दोबारा x की 1 3 की 0, तो नो नीड टू राइट 1, 2 अपॉन x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन x प्लस 5। नाउ जस्ट अरेंज, वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। y जो था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया बाहर, अंदर रह गया 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 5। So this is your answer. One more step you can introduce, take this and multiply inside, तो एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, अदरवाइज यू कैन लीव here also। This is your answer। Pause the video to note it down। Now
most important question, sixth question. Let us see how to start. Again, variable की power variable, variable की power variable, and addition is there. So I can't take log, क्योंकि log का लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा. So first what to do? I will write जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था a plus b. Now differentiate with respect to x. dy upon dx, dA upon dx, dB upon dx. Up now I will differentiate a with respect to x, I will differentiate b with respect to x, and then I will put the value of dA upon dx and dB upon dx in equation first, and I will get dy upon dx. So let us see one by one. A is equal to x plus 1 upon x की power x. Variable की power variable है, taking log both sides. So log a x plus 1, sorry, log x plus 1 upon x की power x. फिर log की प्रॉपर्टी क्या होती है? x को डाउन किया यानी पावर को डाउन किया. Now two functions are there. Which method we will use? We will use product rule. So differentiate now with respect to x. So मैं differentiate करता हूं. ये बना 1 upon a log of 1 upon a. log का किया तो एक, फिर a का dA upon dx. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ध्यान से देखना. सेकंड फंक्शन यानी log का, तो log का किया तो 1 अपॉन जो भी एंगल मल्टीप्लाई. अब एंगल का दोबारा से, तो एंगल का दोबारा से करेंगे तो क्या आएगा? x का 1 और 1 बाय एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. कैसे? ध्यान से देखो. 1 अपॉन एक्स है, ऊपर कांस्टेंट है तो मैं वेरिएबल को ऊपर ले जाता हूं, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि नीचे पावर पॉजिटिव है. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर डाउन भी पावर में कम हुआ. सो कैन आई राइट लाइक दिस? तो 1 बाय एक्स की क्या हो जाएगी? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. वही मैंने यहां लिखा है. ओके, फिनिश. सेकेंड नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. एक्स की करेंगे तो वो 1 हो जाएगा. नाउ सॉल्व इट. एक्स एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे तो एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई. इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. क्लियर? नेक्स्ट प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स. इस एक्स को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक ही के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये बन जाएगा क्या? ये एक्स इसके साथ आ गया तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर. तो इससे ये क्या हो गए? कैंसल. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? dA अपॉन dx. a मल्टीप्लाई हो गया, a की जो वैल्यू थी वो क्या थी? a की वैल्यू थी x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x. यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x plus 1 upon x. So this is the value of dA upon dx. Now b. So b is equal to, b कितना है? x की पावर x plus 1 upon x. So taking log both sides,
दोनों तरफ लॉग लेते हैं क्योंकि पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, डाउन करनी पड़ेगी। सो लॉग बी डाउन कर देते हैं डायरेक्टली, x प्लस 1/x log ऑफ x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सो ये बनेगा 1/b dv/dx मल्टीप्लाई यूज करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग की करेंगे 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसकी करेंगे तो x की 1 और 1/x की -1/x² एज आई टोल्ड यू हियर। नाउ अरेंज इट dv/dx। b वहां चला जाएगा तो b की वैल्यू क्या है, x की पावर x प्लस 1/x ब्रैकेट। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x² प्लस 1/x², सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, प्लस log of x 1 minus 1/x²। Now this is the derivative of b. We will put the value of d/dx and dv/dx in equation first. तो dy/dx क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सबसे पहले d/dx x प्लस 1/x की पावर x, x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज, प्लस dv/dx कितना है, x की पावर x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² प्लस log x 1 minus 1/x। So this is the डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y, जिसमें दोनों वेरिएबल थे और दोनों की पावर भी वेरिएबल थी और उन दोनों फंक्शंस को जोड़ा गया था एडिशन ऑफ साइन से। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑल्सो। देयर वी विल यूज a प्लस b प्लस c, 4 होंगी तो a प्लस b प्लस c प्लस d, एंड वी हैव टू सॉल्व according to this method, first for a, then for b, then for c, and then for d, and then we have to combine that answer. I hope you understood well. Pause the video to note it down. So these all questions from 1 to 6 questions you have to do in your notebook and solve by your own and find out the answer. Try to find out the answer. Till that, Jai Hind.